Good evening everyone. Today we will discuss class 8 chapter chemical effects of electric current and its application is in electricity, right, of class 10. Chemical effects of current basically give you ideas, very basic details about electricity chapter which we will study in class 8. So that is very important chapter from class 10 point of view as well. So please pay your attention here class. The name of the chapter as it suggests chemical effects of current. बेटा केमिकल इफेक्ट्स ही होते हैं सारे के सारे, चाहे सेल है चाहे बैटरी है, ये जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के हम एडवांटेजेस ले पा रहे हैं दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये ध्यान रखना, दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल अबाउट मूवमेंट ऑफ चार्जेस, राइट. Current flows from positive terminal of the battery to negative terminal of the battery, and if current is flowing in a particular electric circuit, then only you can use it somewhere. Suppose if you want to glow a bulb, you need a setup of 2 wires, you need some source, maybe battery is a combination of cells, okay, or direct supply of current, you need it, right? So my dear students, in this chapter we will mainly study about electric current, electric circuits, conductor, insulators, modification of electric testers, electric conductivity, and commonly used chemical effects of current. Class, this is class 8 book of learning science, Cordova publication, right? We are doing this chapter from there. So first definition is conductor and insulator. You know conductors. Conductors are devices which allow current to pass through them. Conductors are devices which allow electric current to pass through themselves. Whereas insulators are devices which do not allow electric current to pass through themselves. Right? For example of conductor, you know iron. Iron is a very good example of conductor. Current can easily pass through itself in case of iron, whereas in case of insulator it do not allow electric current to pass through. Wood is one of the example, right? If you will try to pass electric current through wood or plastic which is there in my hand, it won't be able to pass. Okay, you can see some sockets here. If you will put your finger in this socket, our body is also a conductor, it will allow electric current to pass through it, right? So the definition, will go by the definition, metals that allow electricity or electric current to flow through themselves are called conductors. Example, iron. All metals are good conductors, but lead is an exception. It is a poor conductor of electricity, right? You should know the exceptions as well. Lead and bismuth. Lead and bismuth, very good. Okay, lead and bismuth are poor conductors of electricity. And Graphite is a non-metal. very good conductor, right? Generally non-metals are poor conductor of electricity, but graphite, it is an allotrope of carbon, which you will study in higher classes. Allotrope is that phenomena in which an element exists in more than one form, right? Carbon has 3 allotropes. One is diamond, graphite, and Buckminster fullerene is the third. ग्रेफाइट आपने अपनी पेंसिल्स में भी देखा होगा, राइट? तो ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर होता है, बीइंग अ नॉन मेटल, ये एक्सेप्शन है. जनरली नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है. ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, याद रखना, ठीक है? आई एम रीडिंग बोथ द डेफिनेशन फॉर यू क्लास. The definition of conductor says material that allow electricity to flow through them easily are called conductors. All metals are good conductors of electricity. Graphite is the only non-metal which is a good conductor of electricity. Materials that do not allow electricity to flow through them easily are called insulators, right? Rubber, plastic, wood, glass, these are all insulators. Insulators are also used to protect us from dangerous effect of electricity. बेकेलाइट के होते हैं, जो स्विचेस होते हैं, तभी इनसे हमें करंट नहीं लगता, ठीक है? बेकेलाइट मटेरियल के होते हैं, तो ये भी इंसुलेटर के अंडर आते हैं.
द प्लास्टिक कोटिंग भी देखी होगी आपने वायर्स पर। वायर पे प्लास्टिक कोटिंग का क्या रोल है? क्योंकि प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, ये करंट नहीं लग पाएगा आपको। इसी वजह से होता क्या है, काफी समय के बाद जब ये वायर वेयर एंड टियर हो जाती है तो प्लास्टिक कोटिंग ऊपर से रिमूव हो जाती है। जब प्लास्टिक कोटिंग ऊपर से रिमूव हो जाती है तो उसका मेटलिक पार्ट जो कि कॉपर का बना हुआ है वो दिख जाता है। तो कई बार लाइव और न्यूट्रल वायर, ऐसे अर्थ वायर, ये वायरिंग होती है जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होती है। तो जब मेटलिक पार्ट इन वायर्स के, खासकर लाइव और न्यूट्रल वायर के, एक दूसरे को टच करते हैं तो शॉर्ट सर्किट। ये दो चीजें आपको पता होने चाहिए। थोड़ा बहुत हायर कंसेप्ट भी बताऊंगा बट यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग। शॉर्ट सर्किटिंग से कई बार आपने सुना होगा आग लग जाती है। उसका रीजन यही होता है बेटा, when metallic part of live and neutral wire touch each other then short circuiting occurs। और कई बार आप ऐसे करते हो, एक सॉकेट में ना मल्टीपल प्लग लगा के बहुत सारी चीजें हाई लोड डिवाइसेस लगा देते हो, तो उससे क्या होता है, उससे ओवरलोडिंग हो जाती है, तो सर्किट आपका ब्लो ऑफ हो सकता है और जितने भी अप्लायंसेस आपने उसके साथ कनेक्ट किए हैं वो भी ब्लो ऑफ हो सकते हैं, राइट। तो ओवरलोडिंग की डेफिनेशन ये कहती है व्हेन टू मेनी अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन at the same time in a single socket then this is called overloading। overloading के बहुत नुकसान है। आपका रेफ्रिजरेटर, आपने हैवी डिवाइसेस जो हैवी करंट ड्रॉ करते हैं सर्किट से, अगर एक ही सॉकेट में लगा रखे हैं तो वो सब खराब हो सकते हैं। खासकर वोल्टेज जब फ्लक्चुएशन होती है तो भी ऐसा बड़ा होता है, ठीक है। और वोल्टेज फ्लक्चुएशन हमारे यहाँ काफी कॉमन सी चीज है समर टाइम में, ठीक है ना। अभी तो विंटर का टाइम है तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन इतनी नहीं होती, पर गर्मियों में आपने अक्सर देखा है वोल्टेज फ्लक्चुएशन के बारे में, राइट। तो ये ध्यान रखना। अब इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिक टेस्टर। कई बार आपका इलेक्ट्रीशियन घर आता है, आपने देखा होगा कि वो उसके हाथ में एक टेस्टर होता है, वो चेक करता है कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक टेस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि आप ये चेक करते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा किसी पर्टिकुलर सर्किट में। एन इलेक्ट्रिक टेस्टर कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, अ टॉर्च बल्ब fitted in a holder and some connecting copper wires, ठीक है। अब मैंने आपको एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगा। जैसे यहाँ जो डायग्राम बनाए हैं कुछ सिंबल्स भी होते हैं, बैटरी का सिंबल होता है, सेल का सिंबल होता है, मैं उसके हिसाब से बनाता हूँ। आप चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास सेल की बात करें, प्लीज फोकस ऑन दिस। सेल का ये सिंबल है, ठीक है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन से, राइट, तो बीच में गैप होता है। व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो बैटरी की बात करूं बेटा, बैटरी में एक ऐसे बड़ी लाइन छोटी लाइन बनाना, बीच में गैप दिखाना, देन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से। जैसे ये जो बैटरी है ना 3 सेल से मिलके बन रही है। नॉर्मली एक सेल 1.5 वोल्ट होता है, आपने पढ़े भी होंगे लिक्लांशे सेल वगैरह ये सब, ठीक है। तो ये बैटरी अगर ऐसे वैल्यू बतानी हो तो लगभग 1.5 × 3 4.5 वोल्ट हो जाएगी इसकी, राइट। तो ये बैटरी को आप देखिए, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अब सबसे सिंपल सी बात आती है इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट की एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। आपके 8th क्लास में अधिकतर मैं देखता हूँ सेल की वो पिक्चर बना देते हैं, पर जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना आप ऐसे सिंबल्स बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे बल्ब के लिए भी सिंबल होता है। अगर बल्ब आपका ऑफ है तो सिंपली ऐसे बताएंगे, और बल्ब अगर ये ऑफ है, ग्लो नहीं कर रहा, और अगर आपका बल्ब ग्लो कर रहा है क्लास, तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। ये अलग अलग राइटर्स, अलग अलग पब्लिशर अपनी तरह से लिखते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक सर्किट अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। एक ऐसा क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। अब आपको मान लो घर में जैसे 6-7 से ही ये सर्किट वगैरह बनाने एक्टिविटी आप शुरू कर सकते हैं। बस हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल पे थोड़ा कम स्ट्रेस देते हैं, लेकिन आप चाहें तो ये सामान इजीली आपको इलेक्ट्रिशियन शॉप से मिल जाएगा। आप किसी भी मतलब जाओगे ना इलेक्ट्रिशियन के पास शॉप पर, तो वो 2 सेल की भी बैटरी आपको बना देगा। बड़ा आसान होता है, वो वायर से कनेक्ट ही करना होता है, राइट। तो 2 सेल से सिंपली बैटरी बना लो। जैसे मैंने यहाँ पर 3 सेल की बैटरी बना ली है, राइट। ये बाकी कॉपर वायर है, ये सारी कंडक्टर और कॉपर वायर है, यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा, वैसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है इलेक्ट्रिसिटी, पर सिल्वर और गोल्ड की वायरिंग बहुत महंगी पड़ेगी, राइट। इसलिए कॉपर वायर, पूरा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में कौन सा मेटल यूज होता है? कॉपर यूज होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बेटा बात करो, ऐसे बल्ब है ये, राइट।
ये देखो ये बल्ब आपका ग्लो कर रहा है। बल्ब ग्लो कब करेगा? जब करंट पास करेगा। करंट का सिंबल होता है आई, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। घरों में है ना करंट की यूनिट जो है वो एम्पियर है, उसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है? ये सिंबल ऑफ करंट है, ये ध्यान रखना। प्लीज जूम ऑन दिस। ओके, दिस इज करंट। और ये कंडक्टिंग वायर है। लैब में मेरे पास जो वायर पड़ी होती है ना, वो कॉपर वायर के ऊपर थ्रेड बंधा होता है, राइट। लेकिन आप नॉर्मली आप वायर खरीदने जाओगे, वो आपको प्लास्टिक कोटिंग वाली वायर चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अब ये 4.5 वोल्ट से कोई करंट नहीं लगेगा ज़्यादा, ठीक है, घबराना मत। ये में सप्लाई आती है बेटा 220 वोल्ट की, उससे करंट अच्छा लगता है। 5 एम्पियर और 15 एम्पियर के दो मेन सॉकेट है। जो छोटे वाले सॉकेट आपने देखे होंगे वो 5 एम्पियर वाले हैं, जैसे ये छोटा वाला है, ये 5 एम्पियर, और बड़े वाले जो होते हैं 15 एम्पियर। यशो, आई वांट यू टू डू periodic classification of elements, each and every question from Lakshmi से। Okay class, please keep that thing in mind that these are some of the circuit. Electric circuit बड़ा important है। Please take one picture of this. Electric circuit is a closed and continuous path through which electric current can flow. A closed and continuous path through which electric current can flow. Yes, better. सर इलेक्ट्रिक करंट में स्विच भी होता है। स्विच। हाँ, स्विच वगैरह भी आएंगे, अभी स्विच की भी बात करूंगा। स्विच, ये देखो, ये सिंबल है, इसमें ना की भी लगती है, की भी होता है और एक स्विच भी होता है, राइट। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे ये स्विच ऑफ, स्विच जो है आपका ऑफ है यहाँ पर, ठीक है, या की ओपन भी आप इसे कह सकते हो। जब आपको लैब में कराऊंगा ना एक्सपेरिमेंट, तब उसमें की आती है, मेटलिक की होती है। जब वो की बीच में जुड़ जाती है तो करंट जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेटल की है ना। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। और ऐसे ही अगर ऐसे बात करूंगा, इसका मतलब है स्विच ऑन। आपको पता ही है स्विच ऑफ ऑन आप करते रहते हो, राइट। जब स्विच ऑफ होता है कोई करंट की सप्लाई नहीं होती, जब स्विच ऑन होता है तो करंट की सप्लाई होती है। स्विच ऑन भी कहते हैं इसे और की क्लोज भी कहते हैं। आप क्लास मेरे साथ साथ ये बना सकते हो, डोंट वेस्ट योर टाइम। जो भी बोर्ड पे बना पड़ा प्लीज आप साथ साथ बनाइए, राइट। तो इलेक्ट्रिक टेस्टर की मैं बात कर रहा था क्लास। इलेक्ट्रिक टेस्टर कंसिस्ट of an electric cell, a torch bulb fitted in a holder and some connecting copper wires. The material to be tested is connected in the gap left between the ends. जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं कोई गैप दे दूँ A और B के बीच में, यहाँ पर आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं प्रॉपर्ली। ये इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह के मैंने डायग्राम से बना दिया। अब क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई हम चेक कैसे करेंगे। Please, instead of taking pics class 8, I want you to please take out your rough copy and draw these diagrams, right? Checking how we will check an electric tester, my dear class 8. Please listen. आपको इलेक्ट्रिक टेस्टर को अगर चेक करना है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको जो फ्री एंड्स हैं टेस्टर के, उन्हें ज्वाइन करना है, इससे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। However, if the bulb doesn't glow, it means the tester is not working. जैसे यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है क्लास, ठीक है, करंट भी फ्लो हो रहा है। मैंने सबसे सिंपल एक्टिविटी देखी, इलेक्ट्रिशियन अगर कैसे चेक करता है, जो मेटलिक एंड होता है टेस्टर का, वो किसी भी सॉकेट में लगा के देख लेता है। अगर उसके अंदर लाइट जल जाती है टेस्टर के अंदर, तो उसे पता लग जाता है करंट है, मुझे इसे नेकेड हैंड से नहीं छूना, राइट। और अगर कहीं करंट फ्लो नहीं हो रहा तो उसे पता लग जाता है, राइट। दिस इज हाउ दे डू। अगर मान लो आप ये चेक करना चाहते हो सर्किट भी, अगर मान लो आपने सब कुछ ऐसा अरेंज किया बट समहाउ यू नो बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, तो आपको अपने कनेक्शन चेक करने की जरूरत है कि कनेक्शंस आपने टाइटन किए हैं या नहीं किए, बैटरी के पॉजिटिव एंड को प्रॉपरली बल्ब से कनेक्ट किया है नहीं किया, ठीक है ना। ये कनेक्शंस बड़े जरूरी हैं। तो चेक कीजिए कि कनेक्शन लूज ना हो और आपका बल्ब फ्यूज ना हो, ये बात भी चेक कीजिए। पुराने जो येलो बल्ब आते हैं उनके अंदर एक स्प्रिंग जैसी वायर होती है, आप देख सकते हैं, कई बार वो वायर टूटी हो, ऐसा कोई बल्ब आपने ना लगाया हो, ठीक है ना, ये ध्यान रख सकते हैं। तो आप देखेंगे क्लास कि अगर आप यू नो करंट पास करेंगे तो बल्ब आपका पक्का ग्लो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ मॉडिफिकेशंस की इलेक्ट्रिक टेस्टर के अंदर। बिफोर दैट आई वांट यू टू प्लीज नोट डाउन दिस।
whatever is written on the board. Thank you. Raj?